Good afternoon, all of you. So, as you know, today will be current affairs class because sir has to go. First of all, let me introduce Abhishek Sharma, and he has secured 69th rank in this exam. Okay. So he just came to meet me, and why I want that he should interact with you, because in comparison to the previous attempt, he has made a huge jump in his marks. So he understood some of the mistakes that he was doing earlier, and where he worked and how he improved his marks. So this is what I just thought, that for 15-20 minutes share his strategy. So I think most of you have political science also. So even related to that also, if you want, you can ask the question for 10-15 minutes. Then sir will come. So GS strategy, what common mistakes we often do, and how whatever type of questions come to your mind. So Abhishek is here to answer that. Okay. Hello. First of all the best to all of you for this exam. I started my preparation exactly 4 years earlier, 17th July 2014. So it is a very important day for me. And I was like just you people, you know, caller. So I was like all of you, coming to the classes and not knowing exactly what to do in this exam. But this time, all of you have access to online sources and all these strategies. But at that time, 4 years earlier, it was not so much. So I have made some mistakes in this exam. See, I gave interview all the times. All the 3 attempts, I used to clear the mains. But because of some marks, maybe 30-40 marks in the first attempt, 4-5 marks in the second attempt. So it was by this margin. So I kept on improving myself in all the subjects. But I don't want any of you to make these mistakes and to go through this cycle again and again, because it's a very tiring cycle. तो मैं अपना experience कुछ summarize करता हूँ. First attempt में मैंने GS को बहुत deeply पढ़ा. Current affairs पे कोई 6-7 घंटे दिन का नेट पे बैठे रहना, है ना, सुबह से लेकर शाम तक टेंशन में, अब ये मटेरियल पढूं कि वो मटेरियल पढूं. तो ये सब जो हम करते रहते हैं सब लोग, तो हर तरह की ऐप, हर सिविल्स डेली और ये सब डाउनलोड कर करके किसी पे कोई पढ़ रहे हैं, किसी पे कोई प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं. सो माय जीएस प्रिपरेशन वाज लाइक दिस ओनली. आफ्टर 4 or 5 months आई केम टू नो कि आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना चाहिए करंट अफेयर्स का. मैंने वो भी किया. तो मेरा दिन का 10-12 घंटे जीएस में चले जाता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. स्टार्टिंग मतलब ऐसे जुलाई अगस्त के टाइम पे. उसके बाद मुझे थोड़ा सा समझ आया कि इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए. बट दिस मिस्टेक आई मेड, एंड आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड एडिटोरियल्स टू रिलीजियसली. 4-5 घंटे लगा के न्यूज़पेपर पढ़ना, और ये सब मैं करता था. और जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का जो मेंस था, means I cleared the prelims, and after the prelims, when I used to read the newspaper, I also kept on devoting so much time to the newspaper, 4 or 5 hours to the newspaper and the current affairs. So looking back to this whole process after 4 years, मुझे ये लगता है कि हम इतना ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करते हैं नया चीज़ पढ़ने पे, वो एक मिस्टेक है. हमको दिन में 2 घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर पे नहीं स्पेंड करना चाहिए. ऑल द न्यूज़पेपर्स कंबाइंड 1.5 hour is a very very sufficient for one newspaper. जो भी आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर हिंदू या एक्सप्रेस. और जब हम पढ़ते हैं उसको किस सेंस में पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा इंटेंशन क्या है पढ़ने का, ठीक है ना. तो उसमें हमको पहले ही देखना है कि सब न्यूज़ नहीं पढ़नी, और हर न्यूज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी, और हर न्यूज़ को डेली
उस पर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको डेली उतना एक एक लाइन नहीं पढ़नी। तो दिस कॉमन सेंस वी ऑल हैव टू रिमेंबर, है ना। हम एग्जाम में इमोशनल हो जाते हैं और कॉमन सेंस खत्म हो जाती है। तो फिर ये समझ में आना है कि इतना सब हम अगर 2000 वर्ड्स का एडिटोरियल या किसी ने ओपिनियन लिखा हुआ है, सबसे पहले वो उसका अपना ओपिनियन है, दैट इज नॉट होली ट्रू ऑल्सो, एंड वी विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट 2000 वर्ड्स इन द एग्जाम। और हम 365 डेज तक वो ओपिनियन पढ़ते रहेंगे और कितना हमारे ब्रेन में स्टोर होगा, नहीं होगा सब कुछ। इसलिए उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, लाइक आई स्टिल रिमेंबर वन एडिटोरियल, वन ओपिनियन बाय जोया हसन वेयर इन शी टॉक्स अबाउट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। तो ऐसे ऐसे जो एडिटोरियल्स होते हैं जो अचानक से आपको क्लिक कर जाते हैं, और जो सिलेबस में भी मेंशन है एक्सप्लिसिटली, और जो किसी अच्छे इंसान ने लिखे हैं, मतलब कोई अच्छा आप पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है तो किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखे हैं, सो दोज ओपिनियंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको काट के या कहीं पे भी स्क्रीनशॉट सेव करके आप उसको रख सकते हैं, सो दैट कि एग्जाम से पहले आप उसको पढ़ सकते हैं दोबारा। सो दिस इज हाउ वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दी all the news. We don't have to read everything and anything which is given to us. The second mistake which I did in the first attempt was less answer writing practice. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब नहीं है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। आंसर राइटिंग का मतलब है, मैंने टेस्ट सीरीज मैंने भी ज्वाइन की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट उसको पूरी प्रिपरेशन के साथ उसको देना। मतलब आज अगर हफ्ते के बाद कोई टेस्ट है, ठीक है ना, किसी का हफ्ते के बाद कोई टेस्ट है, मान लो GS1 का टेस्ट है, GS1 में हाफ कंपोनेंट का टेस्ट है फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सोचते हैं कि उस दिन से 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे, अभी हम अपना पूरा प्रोसेस करते हैं। या जब टेस्ट देने की बारी होती है उस डेट को, और आजकल फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, हम उस दिन को स्किप कर जाते हैं एंड वी कीप द टेस्ट फॉर कि हम एंड में कर लेंगे सब कुछ। बट बिलीव मी, दिस एग्जाम इज मोस्ट अबाउट डिसिप्लिन एंड हाउ टू कीप थिंग्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर। जैसे कि मैम की जो टेस्ट सीरीज होती है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें पार्ट 1 पेपर ए पार्ट 1, पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 2 पार्ट ए, ऐसे सिस्टमैटिक चलता है, सो दैट कि इन दी एंड आप एक ही दिन में सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस पेपर दे सकते हो। सो द सेम थिंग गोज ऑन विद GS ऑल्सो। सो व्हेन यू गो फॉर द टेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल कंपोनेंट्स, है ना, पूरा का पूरा GS को तैयारी करके नहीं जा सकते, तो आप उसको प्रैक्टिस, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसमें यू ऑल हैव टू कीप दिस इन माइंड कि वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, सो दैट कि जब हम टेस्ट देने जा रहे हैं, जब एग्जैक्टली हम टेस्ट लिख रहे हैं, उस टाइम हम बेस्ट प्रिपेयर्ड हों। एंड टेक द टेस्ट वेरी सीरियसली एंड डोंट बी afraid of making mistakes. I will suggest you make mistakes, but make them here and make them fast. तो जितनी फास्ट आप मिस्टेक्स कमिट करोगे, उतनी जल्दी आपको समझ आएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग वेयर आई विल टेल यू। एंड द प्रॉब्लम विद GS इज ऑल्सो कि GS का एग्जाम बहुत फास्ट खत्म हो जाता है, मतलब टाइम नहीं होता इसमें, आपको बहुत फास्ट लिखना पड़ता है और सोचना भी बहुत फास्ट पड़ता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपना पूरा पेपर कर नहीं पाया था, ठीक है। still I cleared the mains. So ये मैक्सिमम लोग यहाँ तक आ जाते हैं कि, क्योंकि देखो मतलब 10-11 हज़ार 12 हज़ार लोग जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, दे ऑल आर वेल रेड, सबके पास इंफॉर्मेशन होती ही होती है, बट द मैटर इज हाउ यू इम्प्लीमेंट योर इंफॉर्मेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन and how you answer the question, that is more important. If you are not able to answer all the questions, then what use is reading so much of things daily, है ना। तो ultimately it's about executing the paper very well. तो जितना अच्छे से आपने, और हाँ सारे questions attempt करना, it is more important. So I will suggest you कि आपने जो भी टेस्ट सीरीज दी है उसको religiously follow करें and with systematically and with discipline, so that आप अपनी स्पीड पे भी कंसंट्रेट करें कि मैं अपना पूरे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं। थर्ड मिस्टेक विच आई कमिटेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज आई नेवर रोट अ सिंगल ऐसे। मुझे ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ। स्कूल टाइम में जो लोग टॉपर रहते हैं उनको यही रहता है कि हम लोग स्कूल टाइम में बहुत अच्छा स्टूडेंट्स रहते हैं और हम कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, UPSC एग्जाम इज नॉट अबाउट दी बोर्ड एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, दिस इज completely different examination. In this examination your knowledge is not tested. What is tested is your level of thinking, the clarity of thinking, and how your attitude also, कि how positive you are, how you can interlink between different things. So यहाँ पे जो skills test होते हैं वो कुछ different test होते हैं UPSC के अंदर।
So for the UPSC, essay writing is very different. So never give up on this. हमेशा essay को उतना ही seriously लें जितना हम optional को लेते हैं और जितना हम general studies को लेते हैं. तो this is one more mistake which I committed. Number 4 mistake I committed in my optional. What I did was I studied very hard, but I did not study very smartly. So I started reading from multiple sources. तो मेरे पास मैम के नोट्स थे, मैम के नोट्स के 2 वर्जन थे मेरे पास और दोनों के दोनों एडिशन मैंने पढ़े हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे रिवाइज करूं, पुराने एडिशन से या नए एडिशन से. एंड उसके अलावा मेरे पास जितने भी बाकी रहती हैं बुक्स है ना, रेफरेंस बुक्स लाइक IR की बुक्स होती है हमारे. देखो मैं बताता हूँ, जो हम स्टूडेंट्स अभी इस टाइम होते हैं, हमको क्या होता है कि कोई हमको सोर्सेज बता दे कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कोई मटेरियल बता दे, कोई बुक्स का नाम बता दे, तो हम ना हर जगह हर किसी से ये पूछते हैं सर कौन सी बुक पढ़नी थी, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा क्या पढ़ना है. तो हम वो सारा कुछ सामान लेके अपने रूम पे इकट्ठा कर देते हैं. जब एग्जाम की बारी ये टाइम आ जाता है तो हम खासकर जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद लगता है अब इतना सारा पढ़ना हमको, तो हम लाइब्रेरी में जाके या कहीं भी जाके सुबह से शाम तक उसको पढ़ते रहते हैं. फिर एक बुक कंप्लीट होगी, दूसरी दिख गई, उसको कंप्लीट किया, तीसरी दिख गई. तो ये बुक्स कभी खत्म नहीं होती क्योंकि इतना सारा मटेरियल हमने इकट्ठा कर रखा होता है. एंड वी आर नॉट रीडिंग वन थिंग, वी आर नॉट एबल टू रिवाइज एनीथिंग. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट रीडिंग न्यू एंड न्यू थिंग्स. वी आर रीडिंग वन बुक, देन वी आर रीडिंग अनदर बुक. सो दिस वाज द मिस्टेक आई कमिटेड. मैंने IR की जितनी भी बुक थी, जो एलिफेंट डांस वाला, ठीक है, डेविड मेलोन की बुक, उसके बाद एंड्रयू हेवुड, उसके बाद जितनी भी जो स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं, क्योंकि मैम कहती थी कि आप नोट्स पढ़ो, बट हमको लगता था कि नोट्स तो छोटे से दिखते हैं, है ना, तो ये इससे क्या ही होगा, इससे थोड़ी UPSC होगा. लेकिन बिलीव मी, उसके अंदर उस छोटी सी बुकलेट के अंदर इतना सब कुछ मटेरियल होता था कि अगर हमने वो ढंग से पढ़ा होता तो उसी साल हो जाना था. दिस इज वन more mistake which I committed. And one more mistake which I committed in UPSC political science answer writing was कि जब मैं मैम का क्रैश कोर्स यहाँ पे ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज का पॉलिटिकल साइंस का, मेरा कभी भी पेपर कंप्लीट नहीं होता था. मतलब 250 मार्क्स का पेपर होता है, मैं हमेशा हार्डली 190 या 200 मार्क्स का पेपर करता था और कभी भी 250 मार्क्स का पेपर नहीं होता था. मुझे लगता था कि मैम ही क्वेश्चन मुश्किल बनाती हैं, मैम ही लेंथी पेपर बनाती हैं जानबूझ के. फिर मैंने एक बार किसी से पूछा, यार कि तो तेरा पेपर कंप्लीट हुआ? उसने कहा हाँ मेरा तो कंप्लीट हो गया. फिर मुझे समझ आया नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर है, बट मैंने उसको रेक्टिफाई नहीं किया. एंड इन द एग्जाम आई कमिटेड द सेम मिस्टेक कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, हालांकि 20-30 मार्क्स का ही छूटा, स्टिल छूट गया. सो आई नेवर मेड अ स्ट्रेटजी बिकॉज व्हाट इज देयर इन ऑप्शनल पेपर में आपके पास ना क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके के होते हैं. फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज कंपलसरी, यू हैव टू आंसर ऑल द 5, है ना, 10-10 मार्क्स का होता है. बट आपको कंपलसरी करना है तो आप शुरू में करो या एंड पे करो, करना तो है ही. मैं उसको पहले करता था और पहले हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पहले हमारी स्पीड बहुत स्लो होती है और हम बना के लिखते हैं, सजा के लिखते हैं. तो अगर हम पहले वो कंपलसरी वाले कर लेते हैं 10-10 वाले, तो हम एक क्वेश्चन करने में ही आधा घंटा नहीं 45 मिनट्स लगा लेते हैं. मतलब फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन करने में हमारा आधा टाइम चला जाता है, 1.5 hour इज गॉन. देन 1.5 hour रिमेन्स फॉर 3 other questions, जो कि कभी होता नहीं है पूरा. सो आई मेड अप इन द सेकंड अटेम्प्ट कि स्ट्रेटजी चेंज क्या करनी है, कि फर्स्टली आई विल गो विद द क्वेश्चंस इन विच आई हैव टू चूज, बिकॉज फर्स्ट एंड फिफ्थ में हमको डिसीजन लेना नहीं है तो टाइम लगेगा नहीं सोचने में कि कौन सा करना है. अगर डिसाइड करना है तो एटलीस्ट यू नीड सम टाइम टू रीड द क्वेश्चन एंड टू डिसाइड कि विच क्वेश्चन आई वुड अटेम्प्ट. सो कीप दीज क्वेश्चंस टू डू इन द स्टार्ट, कि मैं कौन सा करूंगा एंड कौन सा उसके बाद. एंड जो 10-10 मार्क्स के होते हैं, इवन इफ यू राइट जस्ट 1 page आंसर, यू विल गेट एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स, है ना. लेकिन अगर आपने 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1 पेज लिखा है तो वो क्या नंबर देगा बेचारा. सो दिस ऑल थिंग, बी वेरी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन, बी वेरी स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन. कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि मैं किस टाइम में कितना टाइम किसको स्पेंड करूं, क्योंकि हमेशा अपने आप को समझो कि मेरी स्टार्ट की आंसर राइटिंग इज स्लो एंड समटाइम्स इवन ऐसा होता है ना, जब लास्ट पे होता है तो हमारे अंदर कौन सी शक्ति आ जाती है पता नहीं है, 5 मिनट में 3-4 पेज हम भर देते हैं. तो ऐसा सच में होता है. तो अगर आप वो क्वेश्चन आप लास्ट पे रखेंगे, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द होल पेपर. एंड सेम थिंग गोज फॉर GS ऑल्सो, कि फर्स्ट इफ वी डू द क्वेश्चंस विच आर वेरी विच वी डोंट नो अबाउट, सो वी विल spend more time in these questions. So start with questions which you already know and which already you have prepared some answer on.
ताकि उसमें आपको टाइम ना लगे। तो एक बार आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, फिर आप फ्लो में आ जाते हो, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी होती। लेकिन स्टार्ट में हमारा पेन नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्टार्ट विद कंफर्ट जोन। तो वो एक और लर्निंग हो सकती है मेरे इस एक्सपीरियंस से, ठीक है। देन केम माय सेकंड अटेम्प्ट। इन द सेकंड अटेम्प्ट आई इम्प्रूव्ड इन माय एसे। In the first attempt I got 107 marks in essay. In the second I got 147 marks in my essay. So what I did was I prepared a lot of essays. I wrote at least 8 essays, and I used to take them to some teacher or some friend of mine कि उसको feedback दे दे थोड़ा सा. And what I learned in the essays कि you have to be very simple. Your essay has to be very simple so that अगर आप उसको 8वीं 9वीं वाले अपने किसी कज़न को भी दिखा दो, वो भी आराम से समझ सकता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपको अपना जो एक्सपर्टीज नॉलेज है सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। इफ यू टेक सम टॉपिक फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड यू स्टार्ट टीचिंग हिम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड ऑल, है ना, मेजॉरिटी एंड ऑल दिस टाइप्स, सो उसको क्या होगा कि उसको हॉब्स की थ्योरी समझा रहे हो, उसको लॉक की थ्योरी समझा रहे हो, तो मान लो वो जो आपका पेपर चेक कर रहा है, ही इज फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, हॉब्स तो उसको समझ आ जाएगा, लॉक समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम उसके पास होगी, क्योंकि हॉब्स बोला क्यों, हॉब्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश ना स्कॉलर, तो उसका लिटरेचर में भी काफ़ी है, बट लॉक का उसको समझ नहीं आएगा, तो देन ही विल, उसको गुस्सा आएगा आप पे, तो आपको मार्क्स कम देगा। तो सेम थिंग हैपन्स, मान लो कोई इकोनॉमी वाला है, आप उसको साइंस एंड टेक वाला ऐसा लिख रहे हो, उसने कभी बेचारे जिंदगी में साइंस अच्छे से नहीं पढ़ी थी, आप उसको साइंस की वो टर्म समझा रहे हो जो उसको कभी आएंगी नहीं, तो उसको गुस्सा आएगा, उसको आपको मार्क्स नहीं देगा। सो इन ऐसे यू हैव टू बी वेरी जनरल, एंड दिस अप्लाइज फॉर जीएस ऑल्सो। सो डोंट शो ऑफ योर स्किल्स, बी वेरी हम्बल एंड बी वेरी सिंपल इन आंसरिंग, और अपने ऐसे को ब्रॉड बनाओ, डीप की बजाय उसको ब्रॉड बनाओ। ट्राई टू इंटरलिंक ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। यू कैन ऑल्सो टेक सम क्यूज फ्रॉम पर्सनल लाइफ ऑल्सो। Many people start their essay with some personal anecdote, because that in essay also, you know, if there is some passion in the essay, it takes the essay to whole new level. So if it comes from the heart, so it makes the essay more beautiful and more appealing, because the other person can also relate with the essay. But don't make it too emotional, है ना? So you have to be rational also. In the essay you have to be rational, because you have to prove your point. So this thing applies in essay. कि you don't have to show off your skills, you don't go into the deep areas, but you keep the broad and you try to interlink everything. Then I committed mistakes again in my second attempt. Okay, मैं क्या करता था, मुझे लगा था कि मैंने बुक्स सारी पढ़ ली हैं जीएस के लिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वीडियोस देखना शुरू करता हूँ। तो मैंने वीडियोस देखना चालू किया, सिक्योरिटी के लिए इड्सा की वीडियोस, जो टॉप एक्सपर्ट्स आते हैं इड्सा पे, उनकी वीडियोस देख ली, किसी की बॉर्डर मैनेजमेंट पे, किसी की किस पे, एक्सट्रीमिज्म पे। तो नो डाउट दे आर वेरी, यू नो, दे आर वेरी इंसाइटफुल, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अमिताभ कांत की वीडियोस, एंड क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, लाइक एंड फॉर एग्जांपल फॉर दिस हेल्थ, फॉर एजुकेशन, जो सेक्रेटरी होगा हेल्थ सेक्रेटरी, उसकी कोई इंटरव्यू। तो मुझे इतना लगा था कि ये एग्ज़ाम जो है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, सो आई यूज टू मेक ऑल दिस परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कि कहीं से कुछ तो लग जाएगा। बट उससे क्या होता है कि व्हेन यू वॉच वन वीडियो ना, फर्स्टली द वीडियो इज वेरी बोरिंग इफ इट इज मोर देन 15 मिनट्स। अगर 15 मिनट से ज़्यादा लंबी है तो बोरिंग हो जाता है, उतना हमारा अटेंशन स्पैन नहीं होता। उसके बाद हम दूसरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद कुछ कहीं और चले जाते हैं, उसके बाद कहीं एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है हम पढ़ रहे हैं, बट हम पढ़ नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा मोबाइल हाथ में या लैपटॉप में चल रहा है, तो मोबाइल होगा तो व्हाट्सएप भी चल रहा होगा बैकग्राउंड में, तो वो टाइम भी चला जाता है उसमें। तो 1 मिनट की वीडियो देख रहे हो, बीच में कोई मैसेज कर रहा है, उसको रिप्लाई भी कर रहे हो वहीं पे, तो दिस हैपन्स। सो इफ यू डोंट मेक योर प्रिपरेशन लाइक अ प्रिपरेशन, सो इफ यू ट्राई टू थिंक दैट एवरीथिंग इज प्रिपरेशन, सो दीज थिंग्स विल हैपन। दिस इज लाइक एन एग्जाम, दिस इज एन एग्जाम, एंड दिस इज लाइक एनी अदर एग्जाम। जस्ट एज वी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाइक इन एवरी एग्जाम ना, तो इस एग्जाम में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। डोंट टेक इट ए मैटर ऑफ कि यार इसमें सब कुछ समझना है, अब ये भी कुछ बोल रहा है, उसका भी लेक्चर सुनने को बैठ रहा हूँ, अब कहीं कोई बाबा बाबा बोल रहा है, उसका भी लेक्चर सुन रहे हैं, एथिक्स में काम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट वट एवर इज इन दिस सिलेबस, ट्राई टू रीड दीज, ओके। सो डोंट मेक दीज मिस्टेक्स।
मिस्टेक नंबर 7, मुझे लगा था कि एनसीईआरटी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़नी होती है, तो प्रीलिम्स खत्म होता था मेरी एनसीईआरटी बंद हो जाती थी, और फिर मुझे लगता था कि ये जो कोचिंग नोट्स हैं, कुछ कहीं से कोई नोट मिल गया वही पढ़ूंगा. बट दिस अटेम्प्ट, इन द थर्ड अटेम्प्ट, व्हाट आई डिड वाज आई टुक बैक ऑल द एनसीईआरटीज, और जहाँ जहाँ एनसीईआरटी पे जो सब्जेक्ट में मैथ, मैंने पूरा एनसीईआरटी का इंडेक्स वाला पेज और सिलेबस रखा और देखा कि कौन कौन सी चीज़ में मैच कर रही हैं, और जहाँ जहाँ मैच कर रहा था वो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से किया. उसके लिए उन सोर्सेज के लिए मैंने कोई और सोर्स नहीं पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल फॉर ज्योग्राफी आई डिड जस्ट द एनसीईआरटीज, द 4 एनसीईआरटीज एंड सम टॉपिक्स like their sources, resource distribution, which is not in the NCERTs. Just that, just the NCERTs. एक तो उनको पढ़ने में कम टाइम लगता है, दूसरा उनको रिवाइज करने में भी जल्दी खत्म हो जाती हैं. And they are NCERTs, यार, they are from a credible source. If you write the language of NCERT, it is very good, and they don't write in the depth like intellectual. They write for general people. So this is what is needed in UPSC. And also for example society portion we ignore. सब लोग इग्नोर करते हैं, लगता है सबको सब आता है, women issues क्या पढ़ना है, मतलब सबको आता है, कुछ भी लिख लो. But what happens is in UPSC it is testing your attitude also. It is not just testing your information and knowledge, it's testing your attitude. So if you read the NCERTs you will get to know कि एक citizen के लिए, एक responsible citizen के लिए क्या attitude होना चाहिए. For example coming to the questions regarding secularism and regionalism, these are topics mentioned in the GS1, है ना. तो हमको लगता है कि अब सेक्युलरिज्म का भी इतना सारा पॉलिटिकल साइंस पढ़ के इतनी डिबेट्स पढ़ लेते हैं कि कुछ क्लियर नहीं लगता कि क्लियर क्या है. बट व्हेन यू रीड द एनसीईआरटीज यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली सेक्युलरिज्म वी वांट इन इंडिया and what exactly regionalism is bad for India. So giving some for example which the constitutional provisions we have for minorities, they are not against secularism, and the constitutional provisions for language and for cultural preservation, they are not against regionalism, they are not against national integration. So if you read the NCERTs you will get to know the broad outlook, what India exactly should be, what India as per preamble is. So then if you have these things in your mind, then your attitude is very good for this examination. And when you write these, for example when you know in your mind that when you are convinced that there should be gender equality, then whatever you write it will be good because your attitude is good, है ना. अगर आपकी attitude में ही खराबी है, अगर आपको लगता ही नहीं है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, फिर आप लिखेंगे ना ऐसे 1500 वर्ड में ना कहीं वो आ ही जाएगा आपका पैट्रियार्कल सोच और जो भी आपकी गलत सोच होगी. सो ट्राई टू improve on these fronts, and by reading the NCERTs they in unconsciously we learn and we'll unlearn some things and we tend to clear ourselves और हम एक better हो जाते हैं, ठीक है ना. अपने जो हमें mistakes होती हैं हम उनको कम करते हैं because everyone is living under some environment. हमारे इर्द गिर्द आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, डेली आप पढ़ रहे होंगे लिंचिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, देन डिस्कशंस देखेंगे उस पर लगेगा कि इंडिया का डेमोक्रेसी खतरे में है. बट रीड एनसीईआरटी अगेन and read the success of Indian democracy. You will get to know how India has survived these years, the dangerous 60s, the emergency, the 90s, जब terrorism भी था, मंडल politics, हर तरफ की गंदी politics थी. Still Indian democracy has survived. And when you write the essay after reading NCERT, the essay will be good. But imagine writing an essay after watching Arnab Goswami. So these things you have to keep in mind. So because your attitude is also important in this exam. If you don't have faith in Indian democracy, if you don't have faith in the constitution, then what kind of citizen or what kind of civil servant you will be? So firstly you have to have the faith in the constitution, the democracy and all the institutions. Then only your attitude will be good for the examination. Because you are coming in the system. आप system का part बनने जा रहे हो, उसको एक अच्छा इंडिया को एक अच्छा future देना चाहते हो, तो ये चीजें आपको अंदर होनी चाहिए. So this is one more thing which NCERT gives. Then the third attempt I told. In the third attempt, I understood that the exam does not test one's knowledge. It is a test of one's, it is not a test of information. It is a test of one's attitude. It's a test of how we apply the limited knowledge and how we interrelate different things.
because ultimately all of you either want to be IAS, IFS, IPS or the other services. All of you want to be the civil servants. All of you want to go into the places where you have to take the decisions, है ना? आपको कुछ करना है, आपको implement करना है, आपको scholar नहीं बनना है, आपको implement करना है, and implement करने के लिए आपको deliver करना है चीज़ों को, ठीक है? आपके पास कुछ knowledge होगी, but ultimately your skill is not in gaining the knowledge, your skill is applying your knowledge. So in this examination also, even if you have limited knowledge, the test of this examination, the purpose of this examination is how you apply your knowledge. ठीक है? तो इस knowledge को आपके पास limited भी हो, आप तभी apply कर सकते हैं जब आपकी जो knowledge हो वो it is clear. So revision के बाद वो clear हो जाती है. Before revision you are dicey कि होगा कि नहीं होगा, but after 2-3 revisions you are clear कि at least इतना percent I know that is true. ठीक है? तो this is one thing. एक यूपीएससी का एग्जाम, मतलब यूपीएससी का एक इंटरव्यू है, मेरा फ्रेंड था, उसने कहा था उसके 70% मार्क्स थे, ठीक है? तो यूपीएससी का नहीं था, किसी और का इंटरव्यू था, आई डोंट नो कि किसका इंटरव्यू था, कोई प्राइवेट सेक्टर का था. उससे पहले गया था, उसका सीजीपीए 10 था, तो उसका गया, उसका सीजीपीए 7 था. तो द पर्सन हु वाज हायरिंग हिम, ही आस्क्ड हिम कि व्हाई आई शुड हायर यू, यू हैव सीजीपीए ऑफ 7, द पर्सन बिफोर यू ही हैड अ सीजीपीए ऑफ 10. तो ही सेड कि सर उसका 100% है लेकिन उसको 100% नहीं आता, मेरा 70% है लेकिन मुझे 70% आता है. So this is also applies here, this also applies here, कि even if you have limited knowledge, if you are clear about it, you can write it with surety. So always keep your sources limited, don't ask everyone कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, जो भी आप पढ़ें उसको उतनी अच्छे से पढ़ें, उस पर ग्रिप इतनी स्ट्रांग हो कि आप उस पर कुछ भी लिख सकें, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट आप आंसर कर सकें. So this you have to do. Then in GS you have to go for breadth not depth. Don't show off your skills of optional paper. और ये कोशिश करना, ये कॉन्शियसली करना कि कहीं मेरा पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर तो नहीं आ रहा है कहीं GS2 के आंसर में. ऐसा गलती होती है हमसे बट करनी नहीं है. You have to be very general so that there should be no, जो आंसर चेक कर रहा है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये बंदा कौन से ऑप्शनल से आया. Then only he can give you marks more rationally. Then essay I told you it's a test of one's attitude also, of thinking, clarity of expressing things, and ability to understand and relate things with each other. In optional, revision from a single source helps. Most important thing is this: keep your sources very limited. If you have read something from ma'am's notes, stick to those. Try to complete and try to revise them again and again and again and again. And after some 5, 6, 7, 8 revisions, you will get to know what exactly political science is. And same thing applies for other optionals. Okay? And you have to practice a lot of answer writing. Answer writing does not have to be elaborate answers कि आप पूरा का पूरा आंसर बना के लिख रहे हैं and all. कभी जब हमारा एग्जाम क्लोज आ जाता है, पास आ जाता है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरा आंसर फ्रेम करें. So what you can do in the last moment is that you can just think about the structure of the answer in the mind and just jot down 2-3 points कि मैं पहले ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा. So with this mental exercise ना, in around half an hour you will be able to complete the whole paper in mind, कि आपको पूरा समझ आ जाएगा कि और उसमें रिवीजन भी हो जाएगा. So this thing is also important. And most important thing for optional paper, start from, आपको इस बार तो बहुत लकी हो जो इस बार मेंस देंगे, 4-5 छुट्टियां हैं ऑप्शनल में. हमारे टाइम कभी एक छुट्टी थी और कभी एक छुट्टी भी नहीं थी पूरा पेपर के लिए. सो रिवीजन was like a headache for us, but it cannot be said about future also. There can be also in future there can be no holiday or one holiday. So what all of you have to do is keep very short, crisp and simple notes for last moment revision. ठीक है, जिसमें आपने मान लो क्या किया है कि स्कॉलर्स का नाम, उसकी बुक्स, ये किस किस एरिया से रिलेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम डेमोक्रेसी पे कोई बुक है, कोई रीसेंट बुक आई है, उसका स्कॉलर का नाम. सो विद द हेल्प ऑफ कि सिलेबस से करके कि लिबर्टी पे कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, नेगेटिव लिबर्टी वाले कौन से स्कॉलर्स हैं, पॉजिटिव लिबर्टी वाले कौन से स्कॉलर्स हैं, राइट्स पे मल्टीकल्चरलिस्ट स्कॉलर्स कौन से हैं, उनकी बुक्स क्या हैं, उनके क्रिटिक्स क्या हैं, उनकी बुक्स क्या हैं. तो दिस इज हाउ स्मॉल यू नोट्स यू मेक. सो एक मैं क्या करता था कि ड्राइंग पैड लिया हुआ था बड़ा, उसमें मैंने सब के छोटे छोटे नोट्स
तो एक पूरे पैड में मेरा मतलब 10-20 पेजेस में मेरा पूरा सिलेबस का नोट्स बने हुए थे. So this you think you can do for IR also. For example, there is India-US relations. You will be reading something from ma'am's notes, you will be reading something from newspaper. You will be reading something from other places. So, but in the end you have to have all the things under one stock, all the things at one place. So, मैम के नोट्स जो आपको समझ आ गया, जो आपको याद रह गया, ठीक है. For example, सुहासनी हैदर का कुछ ओपिनियन है, किसी और का कुछ ओपिनियन है. You compile 2-3 opinions, important opinions, which you consider that I will be writing in the exam. वो ओपिनियंस लिख लिए, उसके बाद कुछ नया न्यूज़पेपर में आ रहा है, नया किसी ने मान लो आज एडिटोरियल आया, उस पर किसी ने नया चीज़ लिखा. So you jot down just one single point or one line and revise, keep revising them, keep going back to them before tests or before anything. So keep revising them. So this thing will make your answer more, because when you revise in your own handwriting, it creates a long lasting memory. किसी और की handwriting में आप पढ़ते हो ना, वो चीज़ याद नहीं रहती, बट अपनी handwriting में कुछ चीज़ लिखी हो वो याद रह जाती है. So keep these things. अपनी handwriting में कुछ notes बना लो, खासकर optional के, so that you are able to revise it very well. And before the examination you are able to revise each and everything, because before the examination nothing will help you more than revision. Nothing. If you are able to revise your whole syllabus, you will excel in your examination. But if you are not able to revise, then आपको लगेगा कि मैं पेपर नहीं कर पाऊंगा, because इतनी सारी चीजें होती हैं उस टाइम. ठीक है. And the second last learning is that don't become too much emotional with this examination. Sometimes we must have read in political science also, passion kills reason, like emotions kill reason. तो जब एरिस्टोटल और प्लेटो की बहस होती है तो इसी बात पे होती है कि एरिस्टोटल says that passion is for some time, there is no security against it, but there should be reason. Reason is something with common reason या कुछ भी reason है. So in this examination also you have to be very rational. You have to understand your own mistakes. If you are too much attached with this examination or too much attached with success, then you will not be able to see the clear picture. You will not be able to see through your mistakes. So हमको ego बीच में आ जाता है कि कहीं किसी ने मेरी गलती point out कर दी, हमको गुस्सा उस पे आएगा, ना कि अपने आप पे. ठीक है. So this is a common symptom of most of the aspirants, which is very dangerous. So I will suggest again, make mistakes and make them faster, and be open to criticism, especially from well-wishers and teachers. कि कहीं आपने आंसर अपने दिखा दिया. लोगों का ऐसा भी होता है, आंसर लिखते हैं बट दिखाते नहीं है, कि कहीं कोई गलत बोल देगा तो मैं क्या करूँगा. तो we all have to evolve. अपने आंसर आज जब क्रूड होंगे, थोड़ा टीचर को दिखा के रिफाइन हो जाएंगे, and before the examination they should be very well. So keep reminding yourself that we have to make mistakes. We are human beings, we make mistakes, but we have to learn from them. And critically analyze, like होता है ना question, critically evaluate. Critically analyze yourself from third person's perspective. कि अपने आप को साइड पे रख के देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है. For example, if I'm not able to make through prelims, don't judge yourself from where you are. Judge from a third person perspective कि गलती कहाँ पे की थी. Then you will be able to solve your mistakes. And I told you, don't ignore NCERTs. And the last thing is, give equal importance to all the subjects. Be that essay, GS1, 2, 3, 4, means horizontal, vertical, और किसी एक में भी, मतलब for example GS1 है, उसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक महीना पढ़ेंगे. ठीक है. वर्ल्ड हिस्ट्री एक महीने पढ़ लेंगे, बट सोसाइटी के लिए एक दिन भी नहीं निकलेगा हमसे. ठीक है. एटलीस्ट उसके लिए कुछ तो पढ़ो. So ये गलतियां हम करते हैं कि we don't give equal importance to all the terms which are mentioned in the syllabus. And what will happen on the day of examination? There will be question from every portion of the syllabus. There will be one question from world history, there will be one question from society, और वो बराबर मार्क्स का होगा. बट हम क्या करते हैं, हम एक महीना वर्ल्ड हिस्ट्री पे लगाएंगे और एक दिन लगाएंगे सोसाइटी पे, which is completely bad. So at least there should be some equality, है ना. कहीं एक हफ्ता तो लगा दो सोसाइटी पे, या वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा टाइम ना लगाएं. So we have to keep our preparation very balanced. Ultimately all the papers have equal weightage, and there is nothing कि इस किसी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं. So we all of you, it's my in the end I will say all the best to all of you, and keep your preparation as simple as possible.
use your common sense at times when you think कि कहीं problem आ रही है, common sense लगा के कर लो, and don't be too much attached or too much emotional with this examination. Be very rational and be very clear about it. Thank you all of you. If you have any questions, you can ask. योजना, see, I did not made it. मैंने first attempt में जितनी भी योजना थी सब पढ़ के सबकी समरी बना दी थी योजना के ऊपर ही. अभी भी मेरे पास पड़ी होंगी कंपाइल करके. बट बिलीव मी, जितना टाइम आप उस पर लगा रहे हैं ना, 2-3 घंटे एक एक योजना पे, एक तो समझ नहीं आता उसका आर्टिकल ढंग से, मतलब आप 2 घंटे लगा के फिर आपको समझ नहीं आता आपने समझा क्या उससे. बहुत कम आर्टिकल्स होते हैं जो पढ़ने लायक होते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर होता है. लेकिन अगर सेम जगह पे आप अपने सिलेबस का कोई टर्म, कोई मेंशन्ड है, कीवर्ड है, उसको अच्छे से तैयार करें, इट इज़ मच बेटर. सो आई विल सजेस्ट स्टिक टू न्यूज़पेपर and have at least 10 to 20 points ready for every term mentioned in the syllabus. This is more than anything else. Sources, देखो पेपर 4 में मुझे कुछ समझ नहीं आया अभी तक कि मार्क्स कैसे मिलते हैं. First attempt I got 89, second I got 109. This time I got 83. I don't know what पेपर 4 का क्या है, कैसे मार्क्स मिलते हैं, I don't know. सो सोर्सेज जो सब लोग पढ़ते हैं वही हैं, लेक्सिकन पढ़ते हैं या फिर गूगल में टर्म्स हैं वो सर्च कर लेते हैं, अपनी रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स. तो आई डोंट थिंक कि पेपर 4, बिकॉज व्हाट हैपेंड विद, you must have heard about that episode, one IPS officer was caught, he was having very high marks in ethics. Ethics में दिल रट्टा वाला चीज़ या फिर आप कोई बनी बनाई चीज़ पे करोगे ना, आई थिंक इट विल बैकफायर. बी वेरी ट्रू, बी वेरी ऑनेस्ट. So आपको चीज़ों का पढ़ना है, you need to have information on things like you must know meaning of values, ethics, morals, you must know about the values of a civil servant, what objectivity means. So all of these things you can search anywhere. You can search on YouTube, you can watch videos on Murnal also, so they are helpful. But in the end, the case studies and all the decisions you make, they are your own decisions. So I will suggest कि be true and be honest in ethics. See, I made notes from the newspaper. I still have them somewhere, but it takes a lot of time. है ना, फिर वही 4 घंटे लग जाते हैं न्यूज़पेपर कंप्लीट करने में. And अगर आप सॉफ्ट कॉपी में बना रहे हो, it is still okay because you can edit them later on. But if you are making them on a hard copy, like किसी शीट पे आज एक पेज पे लिखा, कल किसी और पेज पे लिखेगा, कंपाइल करने में उतना टाइम लग जाएगा आपका. सो इट इज़ बेटर कि यू रीड द न्यूज़पेपर, गेट ए ग्रास्प ऑफ इट, लाइक आई सजेस्टेड कि अगर आपको कुछ चीज़ इतनी ही अच्छी लगी, स्क्रीनशॉट सेव कर लो मोबाइल में. इट इज़ मच बेटर एंड वेरी हेल्पफुल टू रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट ऑल्सो. दैट पोर्शन आई टोल्ड कि अपनी हैंड राइटिंग में कुछ चीज़ लिखो, ये याद रहती है. सो इफ़ यू हैव फॉर एग्जांपल आपने 2000 वर्ड्स का कुछ ओपिनियन पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा और लगा कि एग्जाम में काम भी आएगा, ठीक है, आप कम से कम मतलब 20-30 वर्ड्स में या 2-3 लाइनों में उसका ना संक्षिप्त में समराइज कर दो. दैट इज़ मच बेटर. बट आप पूरे न्यूज़पेपर का सेम कॉपी कर रहे हैं, वो खराब है. बट इफ़ यू आर कंप्रीहेंडिंग समथिंग फॉर योर ओन नॉलेज, देन इट इज़ गुड. But you should not do it like spending 1.5 hour on especially note making. This should not be compulsory, note making. It is just you like something and you have a note of it, just for that. Not कि करना ही करना है, इसके बगैर नहीं होता. So this is not. हाँ. What should be the approach for because most of the newspaper they have very anti-government articles. How should we prepare some pro-government articles? So this is not about you have to be pro-government and all. The thing is, when the criticism is about policy, you have to be open to criticism. Democracy means there is a respect for dissent also. So, for example, if policy comes, and I just remember कि मैंने अभी कोई वीडियो देखी थी सौरभ सबलोग की, he talked about Sardar Patel wanted from secretaries. He did not want it to be yes men. He wanted people who will say no at times of need. So if government, I mean, if someone is saying to you do this thing, but you're not applying your own mind कि क्या सही है क्या गलत है, but in the end I will suggest कि if you think कि कुछ policy है,
You don't have to criticize the policy of the government. Like this is a code of conduct. Code of conduct में you cannot criticize. But when the policy is in formulation, for example that अभी आया था last year जो privatization था health sector का, secondary health sector में district hospitals का कुछ area वो दे रहे थे. Then there was criticism and there was some healthy discussion also. So when there is question like critically evaluate में आएगा FDI पे, तो you have to give some criticisms, but you have to be balanced one. Okay. So this balance approach, we are not able to find how to balance it out, because we'll find the criticism but we won't find advantage. You have to have a broad perspective ना. जो जर्नलिस्ट है उसका पर्सपेक्टिव लिमिटेड होगा, वो किसी उसका कुछ एजेंडा कुछ और होगा, बट you don't have any agenda. You have to do good for the country, so you have to think about all the sections of society, and from those perspective you can say that see that the criticism is very extreme and you have to moderate it to some level. And there is one more question and we'll go. Sir, when did you start preparing for essays and how did you go about it? The sources. For When did you know that you have the content and you will apply it now? Because right for now, essay, see the basic preparation about general studies, it will help you definitely, all the information you have, but for starting an essay you need to have some good quote or good line or good data or something like that. So you need to compile those things कि at least आपको पता है health से या education से या science and technology से ऐसे आता है या women पे ऐसे आता है. So prepare 4-5 quotes, or if you are not comfortable with quotes, prepare 4-5 data facts, है ना, कुछ ऐसा. You must have something उसको कहते हैं कि something heavy in the start कि to begin with, कि you have something जिससे आप उसको एकदम उसको घायल कर सको उसको पेपर देखने वाले को जो चेक कर रहा है, कि आपके पास उतना मटेरियल हो कुछ. It can be a quote, it can be a data, it can be a story, short story also. So आप देखो कि आप किस में आपको ज़्यादा महारत हासिल है. कोई लोग को स्टोरी लिखना बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लिख लेते हैं, तो उनके लिए स्टोरी ठीक है, बट मेरे लिए स्टोरी बहुत ख़राब है, तो I will start with the quote or I will start with the data. So this is comfortable for me. One more question I will go. हाँ. How to approach your options, how to select your options when it comes to options, what you should think before choosing. मैंने तो इस पे किया था कि एक तो इंटरेस्ट था मेरा पहला, बट मोर देन दैट it was about the availability of study material, and at the time it was performing very well, and also it had interrelations with GS. Lot of areas were interlinked. So all these factors decide, and most of all कि आप कितना comfortable हो उस optional से. आप 1-2 महीने पढ़ के आपको पता चलता है कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, because optional is something you have to study for long. You have to study 8 to 9 hours sometimes. So you must have that optional which you can study for that long. Okay, thank you so much.